Hello students, welcome back to my EVS session. Today I am here to start a new chapter which is chapter 12, Work, Force and Energy. Now come, I will explain you with an example so that you will understand force properly. Come fast, come fast. Now see here, like I am pulling, I am pushing. How I am pulling, how I am pushing. हम कुछ ताकत लगा रहे हैं. I am using a force. Okay. Now few more examples like I am writing here. How I am writing? With the help of a chalk, with the help of the hand, but what I am doing? I am using force. Now I am taking this book. I am turning the pages. How the pages are turning? By using force. ताकत लगा के ये ऐसे pages पलट रहा है. Now this pencil box. I am pushing with my finger, it is going down. I am pushing it up with my fingers, it is coming up. How it is being done? With the help of force. ये सारी चीजें ताकत से ही हो रहा है. और एक good example या better example कह सकते हो. Cricket, you all play cricket. Badminton, you all play badminton. In that case, what you are doing? You are hitting the ball in cricket. You are hitting the cork in cricket. So जब तुम लोग ball और cork को hit कर रहे हो, वो कैसे hit हो रहा है? हम लोग ताकत लगा रहे हैं. We are using force. So in short, we can tell force is nothing. It is a push or pull. और ये push और pull तुम्हारा वो playground का fighting नहीं है. Okay? When you're reading force, after that don't push and pull and apply it in the playground. No, that is wrong. Okay? So force we can tell it is a pull or push. कुछ भी चीज हम लोग ऐसे कर रहे हैं, force लगा रहे हैं. कुछ ऐसे पुल कर रहे हैं, force लगा. जैसे दरवाजा, door. You're opening the door, you're closing the door, you're using force. You're opening the windows, you're using force. You're closing the windows, you're using force. तो लगभग सब काम जो भी हम लोग कर रहे हैं, we are using force. Now there are different types of forces. Few are there in the book which I am telling one by one. Frictional force, gravitational force and magnetic force. Now what is friction? Understand? See, I have taken a toy car here. ये सब तो तुम जानते ही हो, तुम्हारे पास भी होगा. तो इससे जब तुम लोग खेलते हो और इसको ऐसे ये करते हो, you are pushing the car, what happens? थोड़ी दूर जाने के बाद ये कार रुक जाता है. फोर्स लगा के तुमने इसको आगे भेज दिया, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद क्या होता है? ये रुक जाता है. तो क्यों रुक जाता है? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. और एक फोर्स है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स. उसका काम क्या है? कोई भी चलती हुई चीज को रोकना. मोशन, चलना मीन्स मोशन. ठीक है, उसको रोकना, उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स. ना ये फ्रिक्शन हमारे बहुत काम का भी है. जैसे हम लोग लिख रहे हैं, वी आर राइटिंग. Because of friction we are able to hold the pen and pencil properly. अगर friction नहीं होता तो हम लोग पेन और पेंसिल जो है आसानी से नहीं पकड़ पाते. जैसे ये पकड़ के हम लोग लिखते हैं, friction अगर नहीं होता तो हम लोग इसको पकड़ नहीं पाते सही तरीके से पेन को. तो friction बहुत जगह हेल्प भी करता है. जैसे चलने में तुम लोग ध्यान दिए होगे, अगर फ्लोर जमीन जो है उसमें पानी गिरा है तो क्या होता है? चलने में मुश्किल होता है. We find it difficult to walk. Why? Because in that case friction is less. एंड फ्रिक्शन इज हार्मफुल ऑल्सो. जैसे मशीन पार्ट्स वो इरोड हो जाता है. और एक इजी एग्जांपल लो, बाईसाइकिल तुम लोग चलाते होगे, उसका टायर्स जो है जो घूमता है, अगर तुम लोग चलाते रहते हो कंटिन्यूस, इफ यू आर राइडिंग द बाईसाइकिल कंटिन्यूसली, व्हाट हैपेंस? स्पीड कम हो जाता है. मतलब फ्रिक्शन वहाँ ज़्यादा काम कर रहा है. एंड हाउ यू आर डूइंग अवे विद दैट? यू आर अप्लाइंग ऑयल. उसमें तेल लगाते हो चक्का में, फिर देखते हो स्पीड बढ़ जाता है. तो बहुत सारे केसेस में फ्रिक्शन हेल्प भी करता है, बहुत सारे केसेस में फ्रिक्शन इट्स नॉट हेल्पिंग ऑल्सो. ओके, now come to the next force. It is the gravitational force. It is the force of the earth which is pulling everything towards itself. Best example न्यूटन ने दिया था, that the apple which is on the tree, it always falls down. Why it is not going up? Because of the gravitational force. This gravitational force of the earth pulls everything down. You are standing, तुम खड़े हो, it is due to the gravitational force. अगर वो force नहीं होता तुम खड़े नहीं हो पाते, गिर जाते. मून में देखो, there is no gravity, तो वहाँ पे
इंसान जो है they cannot walk, they fly. Okay, so gravitational force is very important. Your cricket ball, when it is going up, it is coming down only. This is also due to gravitational force. And third one is magnetic force, chumbak. See here, I have taken one magnet and this is iron. ये देखो, this is मैग्नेट के कारण ये क्या हो रहा है, लोहे से ये अट्रैक्ट हो जा रहा है. दिस इज मैग्नेटिक फोर्स. यू माइट ऑल्सो बी हैविंग मैग्नेट, इसको ट्राई करना. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज योर वर्क. व्हेन वी विल से वर्क इज डन, सपोज आई एम स्टैंडिंग विथ अ बुक, आई एम नॉट डूइंग एनी वर्क. तुमको लग रहा होगा, बट अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट फिजिक्स में इसको वर्क नहीं बोलेंगे. बट इफ आई एम टर्निंग द पेजेस, ये वर्क होगा. अगर हम बुक ऐसे ही लेके खड़े हैं, कोई काम नहीं कर रहा, आई एम नॉट डूइंग एनी वर्क. लेकिन अगर ये बुक को लेके आई एम मूविंग, थोड़ा मूव कर रहे हैं, देन आई एम डूइंग सम वर्क. मतलब वर्क तब करेंगे जब हम लोग फोर्स लगाएंगे और डिस्टेंस भी कवर करेंगे. ठीक है, जैसे ये बुक को हम यहाँ पे लेके खड़े हैं, आई एम नॉट कवरिंग एनी डिस्टेंस, हम कुछ दूरी कवर नहीं कर रहे, तो ये वर्क नहीं होगा. लेकिन ऐसे मैंने समझाया कि अगर हम ऐसे मूव कर रहे हैं, थोड़ा डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो ये वर्क हो जाएगा. सो वर्क इज नथिंग, इट इज द फोर्स विच वी आर अप्लाइंग एंड द डिस्टेंस वी आर कवरिंग. एंड एनर्जी वी ऑल नो, एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क. कितना ताकत लगा के हम क्या काम कर रहे हैं, दैट इज एनर्जी. So students, basically in this chapter we will read about work, force and energy. I have just introduced the terms and in details we will see in the next session. Thank you.